House taking notice of the resolution expressing support for democracy in Pakistan adopted on June 25, 2024 in the United States House of Representatives, recognizing the United States of America as an important and valued partner, recalling the spirit of the Constitution of Pakistan 1973 and affirming commitment to upholding the universal norms of democracy and fundamental human rights enshrined in it, reiterating Pakistan's efforts to safeguard and uphold the aforementioned principles in letter and spirit, in line with the aspirations of our people and the vision of our founding fathers. Reaffirming Pakistan's commitment to building a strong and stable democratic society, the House deeply regrets that the subject resolution clearly reflects an incomplete and wrong understanding of the political and electoral process of Pakistan. The House further regrets that the resolution does not acknowledge the free and enthusiastic exercise of the right to vote by millions of Pakistanis in the general elections held on 8 February 2024. An independent and sovereign country like Pakistan will not accept any interference in its internal affairs, and the subject resolution is an attempt to undermine the state. The resolution draws attention of the US Congress to more important issues such as the ongoing acts of genocide in Gaza, gross human rights violation in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, and state in India. The House calls upon the US and the world community to take immediate steps to alleviate the sufferings of the innocent people of Gaza and Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. The House encourages and affirms its commitment to strong and cooperative bilateral relations with the United States based on mutual respect and sovereign equality, and expresses the hope that in future the US Congress will play a more constructive role in strengthening Pakistan-US bilateral relations by focusing on avenues of collaboration for mutual benefit of both our people and countries. The House calls upon the government of Pakistan to strengthen bilateral cooperation with the United States by enhancing channels of communications to allay such misperceptions and work towards a harmonious relationship for the progress and prosperity of the people of both countries. Janab Deputy Speaker, I know this is not a binding paper, but हमारे मुल्क के अंदरूनी मामलात में जिस तरह की मुदाखलत है वो गैर मुनासिब है, और ये किसी सूरत भी आलमी ताकतों को ज़ेब नहीं देती कि वो किसी भी मुल्क के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी करें. Now I put the resolution to the House. The question is, the resolution as moved be adopted. All those in favor may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it, and consequently the resolution is adopted. Shaista Parvez Sahiba. Shaista Parvez Sahiba. Bole. जनाब स्पीकर, मैं एक बात करना चाहूँगी. जिस तरह ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं सारी दुनिया में, हमें उसकी मजम्मत करनी चाहिए. और मुझे शर्म आती है कि इस वक्त ये हाउस पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पर हमला हो रहा है और उस हमले को ये लोग इनकरेज कर रहे हैं. मुझे अफसोस है कि आज हमारे मुल्क के अंदरूनी
मामलात में फॉरेन पावर्स इंटरफेयर कर रहे हैं, हमें उन पावर्स की रोकथाम करनी होगी। अब मैं और कितना बोल सकती हूँ? ये मैं कह रहे हैं आपको हेडफोन अब करो। जनाब स्पीकर, मैं अफसोस के साथ ये बात करना चाहती हूँ कि आज मुझे शर्म आ रही है कि ये लोग जो मुल्क पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत कर रहे हैं, ये उनको इनकरेज कर रहे हैं। हमें सबको कंडेम करना चाहिए, सबको कंडेम करना चाहिए कि आज शर्म आनी चाहिए, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए इस कदम की अंदरूनी मामलात में मदाखलत से। शर्म करें, आपके मुल्क की सॉवरेनिटी का सवाल है। शगुफ्ता जुमानी साहिबा। बहुत शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर साहब। अभी गुस्सा भी बहुत है, लेकिन इन लोगों का ये रवैया देखे सर जो है ना वो शर्म से झुक गया है। इनको पाकिस्तानी कहलाने का कोई हक नहीं है और यूएसए को हम वार्निंग दे रहे हैं कि हमारी डोमेन में मदाखलत छोड़ दे। ये हमारा मुल्क है, ये हमारा मुल्क है। तुमने पूरी दुनिया में दहशतगर्दी मचाई हुई है, हम तुम्हें पाकिस्तान में दहशतगर्दी नहीं करने देंगे। और डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को जो उनके कंधों पे चढ़कर आते हैं और कल तो कह रहे थे कि हमारा अमेरिका से कोई लेना देना नहीं है, आज अमेरिका के फेवर में और किताबें पीट रहे हैं। शर्म की बात है, शर्म आनी चाहिए इनको। मलिक आदिल साहब, मलिक आदिल साहब का माइक खोलें। बैरिस्टर मलिक अकील। यहाँ पीछे। जनाब स्पीकर, थैंक यू वेरी मच, आपने मौका दिया। आज इस ऐवान में एक रेजोल्यूशन टेबल हुई जो कि एक काउंटर रेजोल्यूशन थी, जो कि अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में इनकी लॉबिंग की वजह से, इनकी पीआर फर्म्स की वजह से वो पास हुई। ये लोग मुल्क दुश्मन हैं, जिस तरह ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर डिफेंस ने कहा कि ये दहशतगर्दों के साथ जाके मिले हैं। ये हमेशा मुल्क तोड़ने की बातें करते हैं और आज इस ऐवान में जब ये रेजोल्यूशन टेबल हुई तो हमें एक खुद मुख्तार मुल्क होने के नाते उसे यूनानिमसली पास करना चाहिए था। लेकिन अफसोस और सद अफसोस जनाब स्पीकर, अफसोस सद अफसोस कि ये वो पार्टी है जो कि एब्सोल्युटली नॉट का नारा लगाती थी और आज इन्होंने उस रेजोल्यूशन के खिलाफ नो में कहा है। जनाब स्पीकर, एब्सोल्युटली शेमलेस लोग हैं ये लोग। जनाब स्पीकर, इनमें कोई शर्म, कोई हया नहीं है। जनाब स्पीकर, ये मुल्क की खुद मुख्तारी को दांव पे लगा रहे हैं, ये मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल हुए जा रहे हैं। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। जनाब स्पीकर, हम एक खुद मुख्तार मुल्क हैं, लेकिन अफसोस होता है कि ये क्लेम तो करते हैं कि पाकिस्तानी अवाम ने इनको वोटें दी हैं, लेकिन इनका कॉन्डक्ट देखा जाए जनाब स्पीकर, ये लोग मुल्क गद्दार हैं। ये लोग लॉबिंग फर्म्स के जरिए जनाब स्पीकर वहां पे पीआर फर्म्स हायर करके रेजोल्यूशंस टेबल करते हैं जनाब स्पीकर। लेकिन आज इनमें इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं है कि पाकिस्तान के खिलाफ एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में रेजोल्यूशन टेबल हुई जो इन्होंने अपने पीआर और लॉबिंग फर्म्स के थ्रू पास करवाई। और आज उसी रेजोल्यूशन, जिस रेजोल्यूशन को यूनानिमसली इस हाउस ने पास करना था और उस पर वोट किया, जनाब स्पीकर आपके सामने है। शुक्रिया। ओके, शुक्रिया शुक्रिया। मिस आशिया इसाक सिद्दीकी साहिबा। शुक्रिया मिस्टर डिप्टी स्पीकर।
कुछ लोगों ने बात की थी कि अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट, जबकि वो एब्सोल्युटली यस थे। आज पाकिस्तान के ऐवान ने, आज पाकिस्तान के सबसे बड़े ऐवान ने अमेरिका को, अमेरिका के साजिशियों को, अमेरिका के पिट्ठुओं को ये बता दिया है कि एब्सोल्युटली नॉट। ये ऐवान बता रहा है कि एब्सोल्युटली नॉट, पाकिस्तान के मामलात में किसी ताकत की हिम्मत नहीं है कि वो इंटरफेयर कर सके। किसी में इतनी जुर्रत नहीं है कि वो अपने आप को सुपर पावर समझ के उसके अंदर इंटरफेरेंस कर सके। और जिनकी ये ख्वाहिश थी, जो पहले अमेरिका पे इल्जाम लगाते थे, आज वो एक्सपोज हो गए हैं। आज ये साबित हो गया है कि इन्होंने अमेरिका के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की थी। ये साजिश न सिर्फ एक्सपोज हुई है, नहीं, मेरा कहना मानना नहीं है आपने सिर्फ क्या मानते हैं? सिर्फ ये साजिश एक्सपोज हो गई है, बल्कि आज शुक्रिया। ऐवान को कंडेम कर दिया है। Shukriya. Order in exercise of the powers conferred by Clause 1 of Article 54 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, I hereby prorogue the National Assembly session summoned by Thursday, the 6th June 2024 on the conclusion of its business. Signed, Asif Ali Zardari, President.